Hello guys, this is Abhishek here and welcome to Get Set AI Innovations. So, स्वागत है आप लोग का वापस से इस पाइथन के सीरीज पे. You are in full energetic mode, I know, more than me. And now we are going to dive into our one of the most important topic, which is loops. So, आप लोगों ने यहाँ तक का कवर किया. Again, you are consistent. It means you are day by day, you are improving yourself. So, loops. आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा loops. What is loops? Exactly, loops का मतलब क्या होता है? गोल 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 until a particular situation got satisfied. Until a particular situation gets satisfied, it is again and again and again it is going to execute that particular scenario or the particular block of code. For example, अगर तुम्हें यहाँ पर पे मैं बोलूं कि मुझे 1 से लेकर के 10 तक का नंबर प्रिंट करके दो, in which language? In one of your favorite language, which is Python. So what will you do? If you don't know about loop, definitely you are going to do like this: print 1, print 2, and your so-called coding, you will come here anyhow. You will struggle a lot, and you came to the end, and you are writing here print 10, and you will come to me, sir. We have done a lot of things, and we have done your task, and we have completed task. Now we can say yes, we are the coders. But really, you are the coders. What is the actual meaning of coding? What is the why? What is the inside feeling? You should do it in efficient way. What is the meaning of efficient way? Efficient way, it means you should use the less number of codes. You should use the full potential of the Python. Why you are going to write the whole code? What if instead of 10, if I tell you to write till 100, you will completely get lost, sir. Why again and again you are doing the task? Because it's my requirement, I can tell you to write this. तो तुमको ये लिखना ही पड़ेगा. Okay, so don't be hectic, don't be nervous. I know a lot of people knows about loop. If you are a coder, you definitely in any of the language you have done a lot of coding. So let's begin our journey of the loop. And yeah, so we will start with हमारे पास में कितने तरीके के लूप होते हैं. We have for loop, we have while loop, we have do while loop. कई लोग बोलेंगे पाइथन पढ़ा रहा है उसमें ये डू वाइल लूप कहाँ से आया. एग्जैक्टली पाइथन डोंट हैव डू वाइल लूप मैन. इट इज जस्ट आई हैव टू स्पेसिफाई अबाउट द सी एंड सीपीपी और सी के अंदर में आई थिंक मे भी जावा के अंदर में भी होता है. सो इन पाइथन वी हैव ओनली द टू लूप्स विच इज while and one more is for loop. Exactly, for loop. Okay, दोनों तो लूप है, दोनों का काम गोल 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 उलझाना है. व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? जब हमारे पास दो हाथ है तो हाथ तो है, एक ठुक तो था, दूसरा देने का क्या जरूरत? एग्जैक्टली exactly, सब चीजों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वैसे ही फॉर लूप के अपने अलग प्रोस कॉन्स हैं, व्हाइल लूप के अपने अलग प्रोस एंड कॉन्स हैं. सो टुडे इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. वी विल सॉल्व a little bit of problems and we are going to explore this whole syntax and lot more stuff. We are going to play with the codes. Okay, so now we can move forward, okay, with our for loop. So let me connect my pen again because there is something. I wait a little bit. Okay guys, just be patient. We are going to explore the codes. Just wait a minute because actually, yeah, correct. Okay. So guys, uh, we are moving with our for loop first. Okay, we will first see what is the for loop. Okay, फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? फॉर लूप का एक सिंपल सा यहाँ पे चीज को याद रखना है. यहाँ पे फॉर फिक्स्ड
number of times. Most important thing, when you know about your iteration, जब तुमको exactly पता है कि तुम्हारा loop कितने बार चलने वाला है, the most probably you are going to use the for loop. जब exactly you know, जैसे मैंने तुमको बोला 1 से मुझे 10 तक का प्रिंट करना है, so most probably you are going to use the for loop. You will just write 1 to 10 in the syntax. We will see the syntax later. First you try to visualize everything, because the visualization is the technique which can enhance your learning skills by 50 to 80%. Okay, so visualize करो. तुमको पहले से पता है, क्या पता है कि तुमको 10 तक का बस नंबर प्रिंट करना है. It means exactly you know कि तुमको 10 तक का 1 2 3 4 you have to run the loop for 10 times. ओके, सो ये होता है. वाइल लूप के बारे में भी हम लोग जानेंगे. वाइल लूप एग्जैक्टली तब यूज होता है जब हमको फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता, बट वी नो द एग्जैक्ट टर्मिनेटिंग कंडीशन ऑफ आवर लूप. ओके, so we will see it later. Okay, so now again come to the topic which is for loop. So जब हमको फिक्स्ड नंबर नहीं पता तब हम इस लूप को यूज करते हैं. और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, वी कैन रन फॉर लूप, we can run for loop in different type of data types. इसका मतलब ये strings पे चलता है, ये टपल्स पे चलता है, ये लिस्ट पे चलता है, ये सेट पे चलता है, ये डिक्शनरी पे चलता है, ये ET से जितने भी डेटा टाइप्स हैं सबके लिए वैलिड है. हाउ पावरफुल इज दैट लूप, कैन यू इमेजिन? अगर यही चीज मैं किसी सी जावा CPP वाले से पूछूं, उनका हालत खराब हो जाता है दोस्तों. लिटरली बेचारे बैठ करके रोते, लाइन ऑफ कोड उन लोग लिखते रहते हैं एक छोटे से चीज के लिए. सोचो, उनको सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के लिए उनको 6 लाइन का कोड लिखना पड़ता है. कितने मेहनती, वी आर द जेन ज़ी, वी आर नॉट गोइंग टू राइट होल स्टफ्स. ओके, सो दिस व्हाट वी कॉल एज द फॉर लूप. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. नाउ इतना सब तो हो गया सर, मेन चीज तो बताओ कि लिखते कैसे हैं एग्जैक्टली. नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक. फॉर लूप को लिखने के लिए आप सबसे पहले फॉर कीवर्ड को यूज करोगे. ओके, दिस व्हाट वी कॉल एज अ कीवर्ड फॉर आई इन रेंज. जैसे मैंने 10 तक का बोला था, तो मैं यहाँ पे वेलकम, ये लाइन आपको हिट कर रहा होगा, आई नो, बिकॉज मैं भी इसी फेज से निकला हूँ. ओके, सो यू जस्ट फॉरगेट दिस, जस्ट इतना समझो ये क्या है. हमारे इंटरप्रेटर के साथ में किस तरीके से बात हो रहा है. फॉर जो है इसको बोलते हैं कीवर्ड. ओके, ये क्या बोलता है कि दोस्त सुन. अब इंटरप्रेटर ये बोलता है फॉर इंटरप्रेटर, मुझे कई सारे इटरेशन करने हैं, मुझे रिपीटेडली कोई टास्क को करना है, समझ जा, बी अलर्ट. दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वेरिएबल. यहाँ पे एक इन्यूमरेशन डेटा टाइप भी आता है. वी विल टॉक अबाउट दिस इन द फर्दर वीडियोस. इट इज अगेन अ कीवर्ड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज दिस. ये रेंज फंक्शन का काम होता है 1 से लेकर के 11 के बीच में नंबर्स को जनरेट करना. 1 से लेकर के 11 के बीच में 1 इज इंक्लूडेड, इट इज एक्सक्लूडेड. इट मीन्स ये तुम्हारे लूप में इंक्लूड होगा और ये एक्सक्लूड होगा. ओके, सो हेक्टिक लग रहा है क्या? जाके उन C++ वालों से पूछो जो 10-10 लाइन के कोड को लिखते हैं. ओके, सो फॉर आई इन रेंज हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे हम लोग कोई डेटा टाइप्स दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई नंबर को जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग टप्पल, लिस्ट, कुछ भी दे सकते हैं. सो दिस इज द एग्जैक्ट सिंटैक्स which we can use to run our for loop. Okay, now next thing, फॉर लूप के अंदर में जब हम लोग कोई नंबर्स को जनरेट करने जाते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास में फॉर आई इन, ये जो रेंज फंक्शन होता है, रेंज फंक्शन के अंदर में हमारे पास में एक बहुत एक छुपा रुस्तम इंसान होता है. इंसान नहीं, एक नंबर होता है यहाँ पे. अच्छा, एग्जैक्टली सब लोग उसको रन करते हैं पहले. ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स. हम लोग ये सारे वैल्यूज इस आई पे जाकर के स्टोर होने वाले हैं. ओके, सो वी विल प्रिंट हियर आई. सो लेट्स चेक दिस फर्स्ट. इज इट रनिंग? और अभिषेक से मजाक कर रहा है. ओके,
फॉर आई इन रेंज विल फ्रॉम 11। अब सब लोग पूछेंगे जब मुझे 10 तक का प्रिंट करना है तो मैं 11 क्यों दे रहा हूँ? क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं, ओ नो, तुम लोगों भी मुझे पागल बनवाओगे। एग्जैक्टली 1 to 10। But wait, what is the catch here? Why I have given the 11? Will come here. So यहाँ पे जब हम, मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे पहले बोला कि ये excluded होता है। Excluded it means it is not going to consider this as your in your program. So ये 11 को कंसिडर नहीं कर रहा है। 11 से पहले एक बार लूप चला, 1 आया, 1 को प्रिंट किया, दूसरी बार लूप के अंदर आया, 2 प्रिंट किया, तीसरी बार लूप के अंदर आया, 3 प्रिंट किया। we have a we actually I wanted to show you something. We have a Python visualizer. If you search this na, you will see the Python tutor. Okay, here you can paste your code. Okay, if I just copy this code, this is one of the most important tool you can use to visualize the course. Okay, so now visualize execution. I think मैं तुम्हारे फ्रेम के पास में आ रहा हूँगा। So मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साइड कर देते हैं। Okay, now I think you can see hear me. Okay, so exactly हो क्या रहा है, यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करके समझ लेना मेरे दोस्तों। ओके, पहली बार लूप चला, ओके, आया, प्रिंट किया 1, दूसरी बार लूप चला, प्रिंट किया 2, जैसे लूप चलते गया और ये प्रिंट करते गया। देखो यहाँ पे जैसे 10 हुआ, 10 के बाद ये बाहर आ गया। ओके, 10 के बाद ये बाहर आ गया। सो एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू शो यू दैट जो लूप है वो इस वाले ये को एक्सक्लूडेड करता है। मगर क्या यहाँ पे कुछ और भी है? हाउ इट इज डिसाइडिंग दैट यू हैव टू जस्ट मूव फॉर 1 स्टेप्स? सो यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैरामीटर, एक हिडन पैरामीटर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। यहाँ पे एक पैरामीटर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्स, स्टेप्स चलने वाला। सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड दिस इज द एग्जैक्ट सिंटेक्स ऑफ योर फॉर लूप। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या प्रूफ है? बिकॉज दिस इज द जेन जी एंड दिस इज द कलियुगा, वी हैव टू प्रूफ एवरीथिंग। क्या कोई चेंज होगा? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंसर्टेड है, बट इफ आई गिव हियर 2, चेंज हो गया। ये क्या हुआ? ये 13579 कहाँ से आया? 13579 कहाँ से आया? इज दिस अ मैजिक शो? नो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर एग्जैक्टली। सो मैंने अपने कोड को यहाँ पे वापस से डाल दिया है और कोड यहाँ पे आ चुका है। सो अब हम लोग इस कोड को एक्सप्लोर करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर फॉर आई इन रेंज 1 to 11। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो ये है, ये इसको हम लोग बोलेंगे स्टार्टिंग। ओके, नाउ this is what we call as the start. Okay, this is what we call as the stop, and this is our step 3s. Okay, so मैं बोल रहा हूँ पहली बार लूप चल और क्या कर, 1 प्रिंट हुआ। ये स्टेप्स है, इसका मतलब इतने इंटरवल, दिस वी आल्सो कॉल एज इंटरवल। ओके, सो इतने इंटरवल के बाद में दूसरा प्रिंट करना। सो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। बट 11 तो एक्सक्लूडेड था, सो इट इज नॉट गोइंग टू टेक दैट 11। यहीं पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड इट विल रिटर्न 13579, 13579 एग्जैक्टली। दिस इज हाउ वी रन द फॉर लूप। सो नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग ये है कंट्रोल Z, कंट्रोल C। मैं बोलता हूँ कि मुझे लूप, मेरे को सीधा नहीं चाहिए, मैं उल्टा हूँ, मुझे उल्टा चाहिए, उल्टा 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 फुल्टा। मुझे 1 से 10 तक इस ऑर्डर पे नहीं चाहिए, मुझे 10 से 10 175 3 2 1। कई लोग अपना दिमाग लगाएंगे और बोलेंगे ये 10 कमा 1 कर दो और एग्जैक्टली रन कर दो। यहाँ पे मुझे कुछ आंसर नहीं मिलेगा बिकॉज पाइथन। मैं बोल तो रहा हूँ 10 से चालू करो, मगर 1 क्या, 1 तो इधर इस साइड है ही नहीं। वो तो 10 से एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। 10 इज नॉट देयर, 1 is not there, sorry. Now what we can do? We will say it तुम 10 से 1 तक चलो मगर उसको डायरेक्शन को चेंज कर दो। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? -1 कर दो। Now if you see, you will see here it is 10 to 2. Why 2? Because 1 is not included. If I put here 0, now 10 से 1 तक इसने प्रिंट कर दिया। अगर मुझे 2 के गैप में चाहिए और 3 के गैप में चाहिए, this is what I can do also.
So this is the step parameter which we have. Okay, we can use it. This is how the whole working process of our loop. Now हमारे पास में हम चलते हैं एक दूसरी तरफ. ये हमारा लूप के बारे में नंबर्स के साथ में हमने खेला. अब हम लोग खेलेंगे इसमें दूसरे डेटा टाइप्स के साथ में. For example, as I already told you, we can work with a lot of data types. Lot of data types means it may be string, it may be tuple, it may be list. Okay, so let's explore all this one by one. So for example, अगर मुझे strings में से एक एक characters को निकालना है, for I in, मैं क्या बोलूँगा, get set AI. What if I do this? Print I. You people just start learning the typing. Okay, if I execute this one, so ये एक एक string को यहाँ से बाहर निकालता है और you can see here it is extracting all the characters. Okay, so you can see here one by one it is extracting and it is printing all the characters. This is what we call as a iteration. ओके, फॉर लूप को हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स के अंदर इटरेट करने के लिए यूज करते हैं. एग्जैक्टली व्हाट इफ आई कंट्रोल ऑल सी, अगर मैं इसको यहाँ पे कोई लिस्ट दे दूं, यू पीपल नो व्हाट इज लिस्ट. इट इज लिस्ट एप्पल बनाना, ये जो लिस्ट के अंदर में क्या स्टोर होता है, एलिमेंट्स स्टोर होते हैं. सो पाइथन के लिस्ट म्यूटेबल्स है. ओके, एंड एज ये इसके अंदर में हम लोग अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल के लिए अभी मैं इतना ही रखता हूँ. तो देखो यहाँ पे एक एक डेटा टाइप के अंदर से वो निकाल रहा है, इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर से अलग अलग डेटा टाइप, अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है एंड इट इज जस्ट प्रिंटिंग. कैन यू इमेजिन व्हाट इज द पावर ऑफ पाइथन? यू जस्ट गो, इस पाइथन के पावर को जानना है ना, उससे पूछो सी और C++ और जावा वालों से. उन लोग बताएंगे कि दर्द क्या होता है, एक कोड लिखने का दर्द. जो तुम just imagine करो, you are writing the code in just 2 lines and that people are writing the code in 10 and 20 lines. Man, that's why the people are preferring for the Python. Why the whole world is looking forward for the Python? That these are the powers. You can use your tuple, you can use your dictionary, you can use your sets, whatever the data type is existing, you can use it here. This is what we call it as for loop. Okay, now next thing we will move for. One more thing is there. मुझे तुमको एक चीज दिखाना था, मैंने भूल गया. ये जो जादू हो रहा था ना, you have seen the magic ना, for I in the range 10,1. मैं तुमको एक फंक्शन देना चाह रहा था. अगर मैं यहाँ पे आई प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये प्रिंट हो रहा था 10 to 9. अब अगर कोई चाहता है कि उसको नॉर्मल तरीके से प्रिंट करे, तो मैं आई एम गिविंग अ ट्रिक. इफ यू आर डोंट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रिंटिंग और डूइंग एनीथिंग इन द उल्टा वर्जन, इट मीन्स अगर घी सही उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ता है. इफ यू डोंट बिलीव ऑल दिस स्टफ्स, यू कैन स्किप दिस एंड यू कैन मूव लिटिल बिट फॉरवर्ड 20 सेकेंड समथिंग. ओके, सो यहाँ पे फंक्शन होता है रिवर्स्ड. ओके, देखो ग्रीन हो गया. रेंज, अगर मैं यहाँ पे रेंज दूँ 1 से लेकर के 10 तक का, 11 तक का देता हूँ. So again it is going to print a 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. It means it is generating number from 1 to 10, and what I am saying, reverse that particular order and reverse that all the numbers, and it is reversing and it is giving us the 10 to 1. So this is just a trick and you can use whatever, wherever you want to use. Okay, you guys can use, you are more intelligent me. So now this is the first thing, we have completed our for loop. Now we are moving forward for the while loop. While loop, जब तक, जब तक. while, क्या होता है while? जब तक, जब तक तेरे. okay, leave it. okay, while loop, we will see why we are using the while loop. What is there in the while loop? क्यों इस लूप में इतना मजा है? while loop, जब एक लूप से काम हो रहा था तो क्या जरूरत है एक तो और लूप को ला करके टेंशन बढ़ाने का? हर बार जरूरी नहीं कि वो आपको टेंशन दे, कई बार वो आपकी चीजों को सॉर्ट करने आया हो, मे बी, who knows. So while loop we will use when we don't exactly know the number of iterations.
when we don't know number of iterations. What is the meaning of iterations? As we have already done 1 2 3 4 5 6, उस पर्टिकुलर चीज को हम इटरेशन बोलते हैं जब हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कितने बार हमको उस लूप को रन करना है. We will every time go for the while loop. We don't have do while and something like that. We have only the while loop. We will always go for the while loop. But what is the catch? लूप रुकेगा कब भाई? चलो मैंने बोल दिया मुझे प्रिंट करना है, मगर एग्जैक्टली लूप रुकेगा कब? सो व्हेन वी नो what we don't know the number of iterations, but what we know, condition. मुझे पता, जब कंडीशन मुझे पता है कि ये करने से मेरा लूप रुकेगा, then we will go for the while loop. क्या एग्जांपल है? एग्जांपल समझो ऐसे. I have a prompt, I have a code which is continuously asking for the numbers. Okay, it is asking for the numbers. If I enter 0, then only it is going to exit that particular scenario. You have seen in the lot of people, lot of places, press 0 for termination, or if you calling with some customer care AI agents nowadays, they are saying press 0 to terminate this call. So you can create that particular thing. So we are going to create a particular calling agent. इस एजेंट का काम क्या है? इस एजेंट का काम है नंबर प्रेस करो और बहुत सारे तुम जो भी आगे फर्दर नंबर के लिए और आस्क करेगा. जैसे नंबर दबाओ, 1 दबाए, 1 से फिर बोलेगा कि एक नया मेन्यू, उसके अंदर जाओगे, वैसे वैसे लूप करो. मगर व्हाट इफ यू प्रेस 0 फॉर एग्जिट. ओके, सो इफ यू प्रेस 0 इट इज गोइंग टू एग्जिट द होल लूप. ओके, सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर इसको समझाऊं मैं, num इक्वल्स टू, तुमने यूजर से इनपुट लिया, इनपुट enter a number. Okay, now while not num double equals to 0, जब तक नंबर 0 के बराबर नहीं हो जाता, you just again ask for a number. सिंपल सा लूप है. ओके, लेट्स सी. सो मैंने 1 डाला, ठीक है. देखो ये मुझे पूछते जा रहा है, मैं जितना नंबर देता हूँ पूछते जाएगा मुझसे. What if I press 0? See what is going on here. We don't know the number of iterations. Iteration exactly we don't know. क्योंकि मैं यूजर हूँ, मैं कितने बार भी दबाऊंगा, तो 1 को 10 बार दबाऊं, मैं उनको 100 बार दबाऊं, मगर we have to terminate that loop, particular loop. So what if I press 0? अगर मैं 0 दबाता हूँ तो यहाँ पे मेरा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है. Okay, so this is what we call as the termination of the loop, and with this while loop we can do. एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या फॉर लूप से जो काम हो रहा है वो हम while loop से कर सकते हैं? Exactly, you can do, but it is all depend on the logic. So for I in range, अगर जैसे मैंने 10 नंबर प्रिंट किया था, जो चीज मैंने प्रिंट किया था उसी को मैंने while loop से ट्राई करूंगा. लेट्स सी, प्रिंटिंग नंबर 1 to 10 using the while loop. Okay, so how you can do this? Any logic, any idea? You have the 30 seconds. You just comment here. I will not wait, man. I will not waste your time. Time is very precious. So so हम लोग कैसे चालू करेंगे? So हम लोग बोलेंगे, हम लोग एक वेरिएबल्स को लेंगे, वेरिएबल को हम लोग रखेंगे, इसका नाम 1. Okay, so while I is greater than, I is less than 10, what do you do? We will go with the equals to 10. What do? You just simply print the I. Okay, but क्या ये प्रिंट करेगा? You just tell me. इसमें कैच, जो चीज मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ. ओके, we again come back. We don't know the number of iterations. Exactly, हमको करना है कहां तक प्रिंट करना है एग्जैक्टली. अगर इस लाइन को हटा दिया जाए तो हमको पता ही नहीं है, हम इन्फिनिटी तक प्रिंट करते जा रहे हैं. ओके, we have not given any condition to terminate that loop. Let's check. If I enter, it will enter in the infinity loop. देखो ये infinity loop में जा चुका है.
इफ यू सी हियर इट इज राइट नाउ इट इज मूविंग। अब मुझे मजबूरन इस पूरे के पूरे को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। इफ आई डोंट स्टॉप दिस, इंटरप्ट द कर्नल। देखो अगर मैं रोकता नहीं ना, ये चलते जाता, कर्नल इंटरप्ट हुआ है तब जा करके यहाँ पे रुका है। आई थिंक ये नहीं रुका है। रिस्टार्ट द कर्नल। हमको कभी इन्फिनिटी लूप में नहीं फंसना चाहिए। ओके दैट्स व्हाई आई स्टॉप इट, बिकॉज ये चलते जाएगा। कब तक चलते जाएगा? जब तक मेरे सिस्टम में डेटा भर भर के 1 1 1 1 करके मेरा सिस्टम फूट ना जाए और ये ना बोल दे कि आउट ऑफ मेमोरी, स्टोरेज फुल। तब तक ये चीज को करते ही जाएगा, करते ही जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर एक्जैक्टली, सो वी विल इंक्रीज। हो क्या रहा है? आई का वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, हर बार 1 रह रहा है और हर बार मैच कर रहा है। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज ट्रू एंड इट इज एक्सिक्यूटिंग दिस। ओके दिस इज द सिंटैक्स। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक ये लूप के अंदर जाते रहेगा और प्रिंट करता रहेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू आई प्लस 1। अब क्या होगा? नाउ इफ यू सी हियर, सो आई का वैल्यू इतना, आई का वैल्यू हर बार 1 से बढ़ेगा और ये एग्जीक्यूट करेगा। क्यों नहीं कर रहा है भाई? आई थिंक सम प्रॉब्लम इज इन दिस सेल। ओके देखो, वो एक प्रॉब्लम है, उसको आप भूल जाओ, यहाँ पे देख सकते हो। सो अब ये क्या कर रहा है? 1 से 10 तक का प्रिंट कर दे रहा है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली the while loop is doing. Until this condition is satisfied, it is going to inside this loop and it is executing this. Okay, so ये था while loop के बारे में। while loop हम तब यूज करते हैं जब we don't know how many times the iteration should be, but we know the satisfied condition कि हमको loop को terminate कब करना है। but when we don't know, we have to use this. Okay, as I told you ना, ये नम वाला जब तक ये 0 प्रेस नहीं करेगा तब तक ये करेगा। सिमिलरली एक और प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं जिसमें वो कंटिन्यूसली हमारे नाम पूछते जाएगा। जब तक हम लोग नाम एंटर नहीं करेंगे तब तक वो उस चीज को ये करते जाएगा। ओके समझ रहे हो? जब तक मैं नाम एंटर ना करूं तब तक वो उस चीज पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट करते जाएगा। कैसे करते जाएगा? जैसे एंटर, थोड़ा सा कीबोर्ड। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम, नाम बोल बच्चा। अब मैं बोल रहा हूँ वाइल जब तक मेरा नेम डबल इक्वल्स टू ये है तब तक तू क्या कर, इसको प्रिंट कर दे हेल हेलो कॉमा नेम। ओके नहीं मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? इसको बाहर रखना पड़ेगा एक्सेक्टली। Okay, again and again I am asking for the name and it is going to give the name and yeah, that's done. If I enter here, what exactly I am saying? I'm right now it is in this line. So okay, मैं चल यहाँ पे enter कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, ये कुछ भी नहीं रहेगा। फिर ये अंदर आएगा, मेरे से पूछेगा, फिर ये नेम को देखेगा। जैसे मैं एंटर मार दिया, गलत जगह में मार दिया। ओके देखो ये अंदर आया, नेम लिया, वापस इसके अंदर आया। अब क्या नेम के अंदर है? कुछ नहीं है। फिर ये वही देगा, फिर ये वही देगा, फिर ये वही देगा। बट व्हाट इफ आई गिव हियर अभी, it is coming out of the loop and it is printing this. So we don't know how many times that we have to run the iteration. हमको पता नहीं है कि हमको कितने बार iteration को run करना है, but we exactly know if I give a name, it is going to execute that particular one. Okay, it is going to terminate that loop. So इस particular चीज में अगर आप कोई string डालते हो तो ये loop को terminate कर दिया। Exactly, but for loop में it is not possible. Without an external or third party keyword or whatever it is break and a different type of conditions are there. So exactly हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ओके अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो हम लोग कंसिस्टेंट हैं, हम लोग जीतेंगे। सो नाउ नेक्स्ट थिंग, हम लोग एक सिंपल सा पाइथन का प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। उस पाइथन के प्रोग्राम में हम लोग फॉर लूप को यूज करेंगे और फॉर लूप को यूज करके एक फैक्टोरियल का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फैक्टोरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करके आज इस वीडियो को यहाँ पे रोक देंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? कई लोगों को भी नहीं पता होगा, जो मैथ्स से डरते हैं। ओके आई एम विथ यू, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल?
ओके, इफ यू सी हियर, हियर इज द फैक्टोरियल. फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है डर. डर. क्लास 9th 10th अराउंड समथिंग आता था फैक्टोरियल जो हमको डरा के जाता था. But exactly we don't have to be scared from this factorial. Okay, exactly factorial का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1. उसके पीछे के जितने नंबर है 1 तक का मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे गलती से 0 मल्टीप्लाई मत करना, पूरा का पूरा चीज 0 हो जाएगा. What do you mean by the 3 factorial? इसका मतलब होता है 3 into 2 into 1. It is 6, it is 120. इस तरीके से अगर 10 का फैक्टोरियल दे दिया जाए तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2 इन जो भी यहाँ पे रहेगा भाई मत इसको सुन लेना. ओके, इसका जो भी आंसर रहेगा. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. ओके, इट इज गोइंग टू वेस्ट योर वॉच टाइम. ओके, इस तरीके से पूरा का पूरा फैक्टोरियल होता है. इस हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाले का जो आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल 5 4 अच्छा चालू यहाँ से होता है ना, चालू इस साइड से होता है, इस साइड से चालू होता है. इधर लिखूंगा तो क्योंकि हम लोग 1 से n तक लूप चलाते हैं इसीलिए. सो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, जैसे 2, इसको हम लोग इसके साथ करेंगे. इसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग इसके साथ करेंगे. इसका जो आंसर आएगा हम लोग उसको इसके साथ करेंगे. एंड फाइनली वी विल गेट दिस. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. ओके, फैक्टोरियल. सो फैक्टोरियल के लिए हम लोग यूजर को बोलते हैं, मेरे यूजर, मेरे प्यारे यूजर, तू एक नंबर मुझे दे दे. अगर तू मुझे नंबर देगा तो मैं तेरे लिए फैक्टोरियल निकाल के दूंगा. एंटर ए नंबर. ओके, सो यूजर तुमको एक नंबर दिया, अब तुम क्या करोगे, फैक्ट 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 फैक्ट. ये जो फैक्टोरियल हो रहा है, ठीक है, हमारे पास में, अब इसको स्टोर कैसे करेंगे, जैसे ये मैंने बोला कि यहाँ से 2 है, इस 2 को हमको किसी पे स्टोर करना पड़ेगा. फिर इन दोनों का जो आया 6, इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा. ये जो आया इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले बोल दे रहा हूँ कि मेरे पास जो फैक्ट है, फैक्ट को मैं 1 रख ले रहा हूँ और मैं फैक्ट में ही इसको स्टोर कर दूंगा. क्या करूंगा, फैक्ट में, फैक्ट जो मेरे पास और जो नंबर में मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, इस वैल्यू को मैं इसी पे स्टोर करते जाऊंगा. ओके, फर्स्ट वी विल राइट द कोड एंड देन वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स इट. ओके ओके, सो फैक्ट हम लोगों ने शुरू में रखा 1 बिकॉज इफ आई डू इट 0 इट व्हेन इट मल्टीप्लाई विद अदर इट विल अगेन बिकम 0. ओके, so we are not going to use that one. So now you can see here for I in range, if I put it till n, if I put it till n, it is not going to take that last input, so that's why I'm taking here n plus 1 and here fact equals to fact into I. Okay, now finally I will return print factorial is comma fact. Then this is what I have to do. Let's see what is the input. If I write here 3, नहीं पता कहाँ से कौन सा सिलेंडर फट रहा है. Sorry guys for the disturbance. Okay, enter a number. If I write here 3, 3 into 2 into 1, it is 6. What if I write here 5? वीडियो का एंड आने वाला है तो डरो मत, ऐसे ऐसे लोग तुम्हें परेशान करते रहेंगे मगर तुम्हें डरना नहीं है मेरे दोस्तों. 120. हम लोग लीड कोड लगाने वाले लोग हैं रे, इन सब चीजों से थोड़ी डरेंगे. वी आर द पाइथन. हमारा जहर इन सबसे ज्यादा जहरीला होता है. हमारे पास सांप है. डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत बच्चा लोग. 120. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव द फैक्टोरियल. आंधी आए तूफान आए चाहे बिजली करके चाहे ऐसे लोग सिलेंडर फोड़े, हम लोग को नहीं डरना है. 120 120. नाउ वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स दिस. हाउ वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स दिस, हम लोगों ने ऐसे खींचा इसको. पाइथन तुमको इसमें विजुअलाइज कराऊं क्या, नहीं मजा नहीं आएगा, तुम लोग मेरे ही साथ पढ़ो. सो ये हियर आई पुट द कोड. लास्ट टाइम दोस्तों, लास्ट है बस, थोड़ा देर और. मैं जान रहा हूँ तुम लोग बहुत मेहनत लग रहा है मगर आज करोगे तो कल बढ़ोगे. ठीक है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की. सो इधर उधर का चीज छोड़ते हुए हम लोग टाइम वेस्ट करना चालू कर, ये सॉरी हम लोग पढ़ना चालू करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ पे हम लोग एक फैक्ट नाम से वेरिएबल पकड़ लेते हैं.
जो हमारा मित्र रहेगा इसी के अंदर पूरा वैल्यू हम लोग एक एक करके स्टोर करते जाएंगे। ओके लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फैक्ट वैल्यू 1, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यूज़र ने इनपुट दिया मान लो 3, क्योंकि मैं 5 लूँगा नहीं, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, सो वी विल गो विद द 3। okay, for I in range 1 to n plus 1, now what will it become? It will become 4. okay, so 1 से 4 तक लूप चलेगा। so first time when we see here I का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 के बाद हमको क्या करना है, फैक्ट में क्या असाइन करना है, फैक्ट इनटू आई। फैक्ट का वैल्यू अभी क्या है, 1 है, आई का वैल्यू क्या है, 1 है। व्हाट नाउ फाइनली हम यहाँ हमको क्या मिलेगा, 1। इसको हम कहाँ असाइन कर देंगे, या मतलब इसी के असाइन करेंगे, ये कनेक्ट है समझो, ठीक है। ओके सो फैक्ट में हम लोग डाल दिए 1, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन। वापस मिटाते हैं इसको। सेकेंड टाइम क्या होगा, सेकेंड टाइम हमारा जो है 1 था, अब आ गया 2, आई हमारा 2 हो गया। फैक्ट का वैल्यू क्या है, 1 है, आई का वैल्यू क्या है, 2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, 2 आएगा, 2 आगे यहाँ स्टोर हुआ, इसी को हमने यहाँ पे डाल दिया। नाउ व्हाट वी हैव, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 2। ओके वेरी गुड, चलो मिटाओ ये सबको, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रावर्सिंग थिंग, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, यहाँ पे 3 आ गया। यही होते हैं आलसी लोग, पाइथन सीखोगे तो ऐसे आलस करोगे। नाउ आई का वैल्यू क्या है, 3 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट, हियर यू कैन सी इट इज 2। 2 into 3 what is that, 6। now this 6 is going to return here, ऐसे घूम के जाएगा, कोई बात नहीं। ओके सो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 6 आ गया। ओके डन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर मिटाओ ये सब। अब मुझे बताओ क्या ये आगे बढ़ेगा, क्या ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा, बताओ मित्रों। ये नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 था, हमारे पास आई का वैल्यू 3 था। अब 4 करने जाएंगे तो ये क्या होगा, एक्सक्लूडेड है, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये लूप से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आकर देखेगा कि हाँ कुछ और, कोई दूसरे भाषा में लिखा है, क्या लिखा है, फैक्टोरियल इज फैक्ट। व्हाट इज इनसाइड द फैक्ट, इट इज 6। व्हाट इज गोइंग टू रिटर्न, फैक्टोरियल इज 6। क्या यही आया था, नहीं यहाँ तो 5 आया था, क्योंकि हमने यूजर ही गलत, इनपुट ही गलत दिया था। तो लेट्स सी, यहाँ 3 दूंगा तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 6। दिस इज व्हाट इज द कोडिंग मैन। ये था पूरे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, एंड इट इज ऑल अबाउट, वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक एवरीथिंग रिलेटेड टू while loop, for loop. Now I just come to the end and this is the last thing and I don't want to leave this। मेहनत कर लो रे आज, नेस्टेड, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसको कराना जरूरी है, पता है। व्हाट इज मीन बाय नेस्टेड इफ, लूप भूल जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टेड इफ। पिछली बार हमने देखा था इफ के अंदर इफ एल्स, इनके अंदर अगर इफ एल्स है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ना, मतलब एक के अंदर अगर दूसरा रहा तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड। चिड़िया का घोंसला नहीं होता है बेटा वो, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड विथ, मिट जाना, व्हाट यू अंडरस्टैंड विथ नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप, फॉर के अंदर एक और फॉर लूप, उसके अंदर एक और फॉर लूप, उसके अंदर एक और फॉर लूप। सिमिलरली 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 ये जो पहाड़ गिर रहा है, जो वाटरफॉल बन रहा है, ये वाइल के लिए भी अप्लाई है। ओके फॉर के अंदर में भी वाइल हो सकता है इफ इट रिक्वायर एनी लॉजिक, वाइल के अंदर में भी फॉर हो सकता है इफ इट रिक्वायर एनी लॉजिक। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द लूप्स। नाउ एक सिंपल सा हम लोग को यूज कहाँ आता है, जब हम लोग को 2 से 3 या मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ में काम करना पड़े। कैसा मल्टीपल वेरिएबल्स, हमने क्लास 9 10th के अंदर में बहुत गंदा चीज पढ़ा है, मैट्रिक्स।
और ये आगे बहुत पढ़ेंगे, इवन दो इफ यू आर गोइंग फॉर द गेट एंड ऑल, मैट्रिक्स इज ऑलवेज बी देयर, इफ यू आर गोइंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल, मैट्रिक्स रहेगा ही रहेगा। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर में दो नंबर, दो तरीके की चीज होते हैं, मैट्रिक्स 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 1 2 3 4 ऐसे डिब्बा डिब्बा कुछ बनते रहता था। अरे भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे को भी डर लग रहा है। ओके, सो यू लीव दिस ऑल दिस। इफ यू वांट टू प्रिंट ए पैटर्न लाइक 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, like this if you wanted to print. okay, so इस तरीके से अगर आपको प्रिंट करना है 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3, how you are going to do? दिस इज व्हाट यू कैन यूज। सो यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे तो ये देखो, ये एक लूप ऐसे चल रहा है, एक लूप ऐसे चल रहा है। ओके, देखो यहाँ पे वन, ये वाला लूप, ये एक लूप चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक लूप चल रहा है, 2 2 2 3 3 3 1 1 1। So what we can do, we can run two loops simultaneously. Yeah, we can. How you are going to do that? So to run that, for I in range, मुझे कहाँ तक का चाहिए? चलो मैं लेता हूँ, मुझे जैसे 4 तक, मैं 4 लूंगा तो 3 तक चलेगा। ओके, सिमिलरली फॉर j इन रेंज, अगर मैं इसको लेता हूँ 1 4 तक, अगेन इट इज गोइंग टू टेक। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं i j, देखो सेम चीज प्रिंट हो गया, 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। This is what we call as the nested loops, isn't it? Okay, similarly now it is the task for you, you have to print 2 से 3 चीज तुमको करना है। pattern print, I'm not going to do this and I'm not going to tell you this। अगर खुद से कुछ करना चाहते हो तो इसको तुम करोगे, I know। ये पैटर्न को तुमको प्रिंट करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, 5 4 3 2 1, डन। दूसरा पैटर्न, स्क्रीनशॉट ले लो, 5 4 3 2 1। स्क्रीनशॉट ले लो, 5 4 3 2 1। फाइनली तुमको ये पैटर्न प्रिंट करना है। ओके, इफ यू आर एबल टू डू दिस, इट मीन्स योर नेस्टेड लूप इज क्लियर। okay, and I will trust that, I will believe that everything is clear। okay, so guys, this is for loops, every concept of the loop is now clear। okay, for loop, while loop, nested loop, हमने इन सब चीजों को देखा बहुत अच्छे से, अराउंड सारी चीजों को कवर किया है, लगभग लगभग बहुत अच्छे तरीके से किया है। दिस इज अभिषेक साहू, थैंक यू फॉर watching this video and thank you for be with me till this day। may your code compile in a single go। subscribe GetSet AI Innovations। okay guys, thank you।